کون لے کر آیا تھا آپ کو؟ خود آئے؟ میرے والد صاحب ہی لے کر. اچھا کیا کہتے تھے والد صاحب؟ والد صاحب کہتے تو پاگل ہے. کیا کہتے تھے والد صاحب؟ کہ میں اس کو لے آتا ہوں وہاں سے جا کر. ابھی میری امی کہتی ہیں کہ وہ اس کو ادھر ہی رہنے دو کیونکہ وہ پاگل ہے. میرے گھر والوں نے مجھے ادھر ایڈمٹ کروایا ہوا ہے. آتا ہے ملنے آتا ہے میری بہن کو؟ ایک دفعہ آئے تھے، وہ کمزور تھے، میں جانا چاہتی تھی پر مجھے کوئی لے کر ہی نہیں گیا. دل کرتا ہے ان کو ملنے کو؟ دل کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ محمد عاطف بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ نے دیکھ لیا ہوگا میں کہاں پہ موجود ہوں. یہ لکھا ہوا ہے جی فاؤنٹین ہاؤس پروجیکٹ لاہور مینٹل ہیلتھ ایسوسی ایشن. یہ بلڈنگ ہے سر گنگا رام کی، جن کے نام پر گنگا رام ہاسپٹل سرکاری بھی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایسے افراد کا خصوصی طور پر ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے اپنی زندگی نہیں گزارتے جس طریقے سے آپ گزار رہے ہیں یا میں گزار رہا ہوں، یا نارمل لائف جسے کہا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں انہیں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. کوئی جھلا کہتا ہے، کوئی جھلی کہتی ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی اب نارمل کہتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں صرف تھوڑی سی تربیت کی کمی رہ جاتی ہے. تو وہ کمی ایسے ہاسپٹل سے، ایسی جگہوں سے پوری کی جاتی ہے، اور پھر یہ تمام افراد عام معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں. ہاسپٹلس میں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے، یعنی یہ جو فاؤنڈیشن ہے، اسے میں ہاسپٹل بھی کہوں گا یا فاؤنڈیشن بھی کہوں گا، یہاں پر ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو انتظامات معاملات کیے جاتے ہیں اس کو خصوصی طور پہ پورا سٹاف دیکھتا ہے. اور سٹاف میں جو یہاں پر موجود ہیں ان میں جو ان کے سینئر افراد میں موجود ہیں، کچھ پرسنالٹیز میں ساتھ کھڑی ہیں موجود ہیں، ان میں ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن کہہ لیں آپ، سروسز کہہ لیں، وہ موجود ہیں. اپنا انٹروڈکشن وہ خود کروائیں گے، اور یہاں پر کیا کیا ہوتا ہے، کس روٹین سے ہوتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے، کس طرح کے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں، یا وہ افراد، وہ میری مائیں یا میرے بزرگ جنہیں ان کے بچے اس وقت میں چھوڑ جاتے ہیں کہ جس وقت میں بچے ہی ان کا سہارا تھے، تو پھر یہ اپنی فیملی بناتے ہیں. یہ گھر انہیں گھر ملتا ہے جسے ہم لوگ فاؤنٹین ہاؤس کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں وہ اپنی باقی کی زندگی ان افراد کے ساتھ گزارتے ہیں. پروگرام کو میں آغاز کرنے لگا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن. مکمل اپنا تعارف خود کروائیں گے سر. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے بتائیں؟ میں ٹھیک. آپ سر؟ الحمدللہ سر پلیز اپنا انٹروڈکشن مکمل کروائیے. بٹ صاحب سب سے پہلے تو ویلکم ٹو فاؤنٹین ہاؤس. میرا نام ندیم نور ہے، میں ڈپٹی ڈائریکٹر سروسز ہوں. فاؤنٹین ہاؤس کے اسٹاف ممبرس کے ساتھ آپ کے لیے موجود ہیں. شکریہ. اور جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، 2 طرح کے میجر ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں او پی ڈی میں روزانہ سینکڑوں مریض آتے ہیں، اور پھر ان پیشنٹ میں یعنی داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد تقریباً اس وقت ہمارے پاس 400 کے قریب ہے. 400 بیڈڈ فیسلٹی ہے. ٹھیک ہے. 400 بیڈ ہمارے پاس موجود ہیں؟ جی موجود ہیں. ٹھیک ہے. جس میں اور پیشنٹس کی تعداد ہے تقریباً 390 کے قریب. یہ 5-10 اوپر نیچے چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن عید کے قریب ہمارا ہاؤس فل ایسے بھی ہوگا کہ معاشرہ ہمارے مریضوں کو بہت اچھے طریقے سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب تو کچھ معاملہ بہتر ہوا ہے. ویسے جی چاہتا ہے سب کا، پورے معاشرے کا، کہ مریض کو گھر سے، سسٹم سے دور کر کے جتنا عرصہ دور رکھا جا سکتا ہے رکھا جائے، جو کہ بہرحال بحالی کا پروگرام یا ریہیبلیٹیشن تو نہیں ہے، لیکن ایسا تکلیف دہ معاملات ہوتا ہے. تو ابھی دیکھیں گے. میں وہی دیکھنا چاہوں گا کہ آپ آغاز کہاں سے کرتے ہیں جب کوئی پیشنٹ آتا ہے، وہ کیا وجوہات بنتی ہے؟ لوگ جب آپ کے پاس پیشنٹ چھوڑ کر جاتے ہیں کیا کہہ کر جاتے ہیں؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے خود بھی سڑک پہ کسی کو دیکھا ہو اور آپ اٹھا کر لے آئے؟ ان دونوں باتوں کو ذرا تھوڑا سا بتائیں. ایسا تو بارہا دفعہ ہوا کہ فیملی ممبرز یا معاشرے نے ہمارے مریضوں کو ڈسون کرنے یا چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال ہمیں بھی فیملی کا بحالی کے پروگرام میں کسی حد تک انپٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم انہیں بھی ٹرین اور موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی علاج میں حصہ لیں، کیونکہ مریض نے واپس گھر اور معاشرے میں جانا ہے. اس علاج کا مقصد بحالی ہے. کتنے فیصد تک یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں کہ مریض اپنے گھر پہنچ جاتا ہے آپ کے پاس آنے کے بعد؟ دیکھیے ایسا کتنا ہوا ہے؟ یہ کرونک النیسز ہیں. اس میں ایکیوٹ فیز یعنی انڈور کے علاج کے بعد اگر علاج چلتا رہے تو مریض معاشرے میں اپنے پورے کلرز کے ساتھ واپس آ بھی جاتا ہے اور آ بھی سکتا ہے. مسئلہ وہاں پر آتا ہے جب ایک تو ہم علاج میں تاخیر کرتے ہیں،
اور اس دوران میں اتنا تھک جاتے ہیں اور کھپ جاتے ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ اب مریض کو ہم ہسپتال یا ڈاکٹرز کے حوالے ہی کر دیں، لیکن درمیانی راستہ ہی بہترین راستہ ہے کہ ذہنی بیماری کو مان لیا جائے اور جتنا جلدی ممکن ہو اس کا علاج کروایا۔ ہم سارا علاج یہیں کرتے ہیں؟ جی ہم سارا علاج کرتے ہیں۔ ہم اس وقت فاؤنٹین ہاؤس میں موجود ہیں اور یہ تمام ہمارے بلڈنگز ہیں۔ اور یہ فاؤنٹین ہاؤس کو چلاتا کون ہے؟ کہ سرکار چلاتی ہے ہماری؟ نہیں، یہ لاہور مینٹل ہیلتھ ایسوسیشن ہماری گورننگ باڈی ہے اور یہ ایک این جی او ہے۔ سرکار سے ہمیں دعائیں بھی ملتی ہیں اور بہت معمولی سا۔ سرکار سے ہمیں دعائیں ملتی ہیں کہ دوائیں ملتی ہیں؟ دعائیں ملتی ہیں، دعائیں بھی ملتی ہیں۔ اللہ کرے دعا کرتے ہوں وہ، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ نہیں، سرکار بھی سرکار دعا کرتی ہے؟ کسی حد تک ہمارا ساتھ بھی کس حد تک ساتھ دیتی ہے؟ حد بتائیں۔ تھوڑی سی دوا بھی مل جاتی ہے، کچھ سپورٹ بھی مل جاتی ہے، کیونکہ سرکار بھی تو ہم میں سے ہے نا۔ اور جیسی ملنی چاہیے ویسی ملتی ہے؟ نہیں، دنیا میں اس وقت 550 فاؤنٹین ہاؤسز ہیں، جن میں سے پہلا نیو یارک میں امریکہ میں 1944 میں بنا اور دوسرا پاکستان میں 1971 کے قریب بنا، جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں۔ لیکن باقی تمام فاؤنٹین ہاؤسز کو گورنمنٹ سپورٹ اور پیٹرنیج ملتا ہے۔ ہمیں اس حوالے سے ذرا کمی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ارد گرد کی کمیونٹی، لاہور اور پاکستان کے دوسرے لوگ اس کو پوری طرح رن کرتے ہیں۔ ہم آپ اور میں نا دعا کر سکتے ہیں ندیم صاحب کہ ہمارے سی ایم پنجاب صاحبہ جو کہ ہر ادارے میں ماشاءاللہ موجود ہوتی ہیں، ہر ادارے کو بڑا اچھا لک آفٹر کر رہی ہیں، تو امید کرتے ہیں اللہ کرے یہ بات بھی ان تک پہنچے کہ اس فاؤنٹین ہاؤس کو ضرورت ہے، یہاں پر بھی ایک ماں کی ضرورت ہے۔ یہ بچے ہی ہیں؟ بالکل ہیں، اور یہ ایسے بچے ہیں جنہیں ایٹ ٹائمز ان کے گھر والے اور پیرنٹس بھی ڈس اون کرتے ہیں اور پھر ہم ہی ان کی فیملی ہوتی ہیں، تو ان کی خدمت تو بہت شاندار بات ہے۔ یہ تو ہم اللہ کے مہمان ہیں ہمارے پاس۔ اللہ تو ہم سبھی مہمان ہیں، ہم سبھی نے واپس چلے جانا ہے۔ ندیم صاحب آپ کہاں سے آغاز کریں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ گفتگو بھی کریں، جو لوگ ہیں جو آپ کی ٹریٹمنٹ میں ہیں، ہم کہاں پہلے جائیں، کس وارڈ میں پہلے جائیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمارا ایک بہت شاندار، ویسے تو پورا فاؤنٹین ہاؤس شاندار ہے، لیکن کیوں نہ ہم ہمارا ایک ڈیڈیکیٹڈ فیمیل ونگ ہے، اچھا جی، وہاں سے سٹارٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ جس میں ہماری 100 کے قریب بہنیں علاج کے لیے موجود ہیں، جس میں وہ علاج کس قسم کا چل رہا ہے؟ ان کی نارمل لائف کے لیے یا وہ ایسی خواتین ہیں؟ ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، جن میں سے سینکڑوں ہزاروں مریض واپس معاشرے میں جا بھی چکے ہیں، کئیوں کی شادیاں ہوئیں، کئی زندگی کے دھارے میں واپس آئے۔ اچھا، شادیاں بھی ہوئی ہیں؟ یہ شادیاں کروائی کس نے؟ آپ نے اس ہاسپٹل نے کروائی ہیں؟ نہیں، ہم نے تو چلے اپنے حصے کا جو رول پلے کیا سو کیا، ہاں جی، لیکن جب وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں تو وہ بالکل میرے اور آپ جیسے انسان ہیں۔ بالکل سر۔ یہ کس نے بنائی ہے؟ ہم اس وقت فاؤنٹین ہاؤس کے آرٹ تھراپی یونٹ میں ہیں۔ اچھا۔ یہ ہمارے پیشنٹس کی ڈرائنگز بھی ہیں اور آگے وہ پینٹ بھی کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑا یو خوبصورت کین ہے۔ ٹیک اے لک۔ بالکل، یہ تو بڑا پیاری ڈرائنگ کی ہوئی ہے لوگوں نے۔ ہمارے یہاں روٹین کا ایک کام ہے، کیونکہ آرٹ تھراپی کا بھی بحالی کے علاج اور پروگرام میں ایک رول۔ سر دیکھیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پینٹنگ کرنے والا تصور کر سکتا ہے، اس کا مطلب وہ اپنے دماغ کا استعمال کر سکتا ہے۔ از اے نارمل پرسن۔ بھائی، ان میں اور مجھ میں اتنا ہی فرق ہے جتنا مجھ میں اور آپ میں ہے۔ میری آنکھیں کمزور ہیں، آپ کی نہیں ہیں۔ اسی طرح کسی کے برین کیمیکل اور برین اور نروز یا سائیکائٹرک ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے، جس سے گفتگو کریں۔ ہاں، السلام علیکم جی، ضرور۔ کیسے ہیں؟ کیا پینٹ کر رہے ہیں؟ یہ میں 2 بنائی ہیں، میں نے 100 سال پہلے بنائی تھی، یہ کوئی 6 مہینے پہلے۔ اور یہ تو آپ ہمارے فاؤنٹین ہاؤس اور فاؤنٹین جو سینٹرل گنگا رام بلڈنگ ہے اسی کو ڈرا آپ نے کیا۔ اچھا، بڑا زبردست آپ کا کام ہے، شاباش۔ کیا نام ہے آپ کا؟ راشد حسین۔ راشد، کہاں پہ رہتے ہیں آپ؟ رابی پور قلعہ لجپت سنگھ۔ کس جگہ؟ رابی پور قلعہ لجپت، جہاں وہ جمیل فوری ٹی وی کا اداکار تھا، وہ اندھیرا میں چلا تھا پولیس کا ڈرامہ جو تھا۔ ہاں جی، ہاں جی، اس آواز ESI ہاں جی، جعفر حسین۔ آپ لاہور میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ رابی پور قلعہ لجپت سنگھ۔ کیا؟ جو ٹی وی کا اداکار تھا جمیل فوری جو تھا، ہاں جی، جو اندھیرا جالا میں وہ جعفر ESI جعفر حسین، وہ ہمارے محلے بہت ہو گئے۔ اور جو گور چوک ہے نا جہاں پر، اس کے نام سے رکھا گیا۔ وہ پریزیڈنٹ جنرل ضیاء اور چیف منسٹر نواز شریف صاحب اس زمانے میں بم بلاسٹ میں مارے گئے تھے۔ یہ علامہ صالح سے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے BA کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ ایسا بات ہے کہ 68 69 میں جب سینٹرل میں علماء کا اسٹیٹس سارے پنجاب میں سب سے زیادہ ہوتا تھا نا، 6ٹھی کلاس میں ایگزام سے پہلے میں بیمار ہو گیا تھا اور ایگزام میں 2nd آیا تھا۔ ماشاء اللہ۔
وہ وہیں سے میرے والد اور چاچا میرے ساتھ سے شروع کرتی. آپ نے پینٹنگ کب شروع کی؟ پینٹنگ یہ ہم نے شروع کی ہے کوئی 4 سال ہو گئے ہیں. یہاں کتنی دیر ہو گئی آپ کو؟ 5.5 سال. اچھا ماشاء اللہ. بچے کیا کرتے ہیں آپ کے؟ شادی نہیں کی. آپ نے شادی نہیں کی؟ نہیں. کیوں؟ بس بہت اچھا کیا آپ نے. آئیں آگے تشریف لائیں. جی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب جناب میں بھی دیکھ رہا ہوں سب آرٹ بیٹھے ہیں یہاں پہ, یہ پینٹنگ کروائی جا رہی ہے. یہ سب کو آپ کرواتے ہیں یا جن کو آپ اسکل کو جج کر لیتے ہیں پھر وہ اس طرف آتے ہیں؟ کافی حد تک, اور جن کی اسکل کم ہوتی ہے تو انہیں ہمارے ٹرینرز اور تھراپسٹ, آرٹ تھراپسٹ اس میں ٹرین کرتے ہیں. لیکن یہ بہرحال ایکسپریشن کا ایک ذریعہ ہے جس سے ذہنی صحت میں بہتری پیدا ہوتی ہے. پینٹنگ جب یہ بن جاتی ہے اس میں تیار بھی ہوئی ہے, اس کے بعد ان کو کیا کرتے ہیں؟ سیل کرتے ہیں کچھ, اس سے اس طرح پہ پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں ہم اپنے اینول ایونٹس پر. لیکن اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے جو ممبرس صحت یاب ہوتے ہیں پھر ان کی سکسیس سٹوری کے ساتھ ہم وہ پینٹنگ آنے والے مہمانوں کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں. انہیں بتاتے ہیں کہ فلاں نے ڈرا کی تھی اور وہ ماشاءاللہ ایک اچھی زندگی, صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. ماشاءاللہ, ویری گڈ. یہاں پہ سر آپ 2 صاحبان تھے جو آپ بتا رہے تھے, یہ کون سا ایریا سر آپ کا؟ کتب خانہ ہے. ہماری ایک فل فلیج فل سروس لائبریری ہے. ہم اس وقت چونکہ افطاری سے شام کے وقت کے قریب آ گئے ہیں تو اس وقت اتنا رش اور گہما گہمی نہیں ہے. ویسے یہ ایک فل سروس لائبریری ہے جہاں پر پیشنٹس اور اسٹاف ممبرس تشریف لاتے ہیں اور بکس پڑھتے ہیں, بکس پڑھتے ہیں, روٹین میں پڑھتے ہیں, کلاسز بھی ہوتی ہیں. اور یہ ہمارا ایک کمپیوٹر روم بھی ہے جہاں پر پیشنٹس کو بنیادی کمپیوٹر سکلز بھی سکھائی جاتی ہیں. یہ ٹرمینلز آپ کے سامنے. ویری گڈ. یہ سب لوگ سیکھتے ہیں ان میں سے کافی لوگ. یہ یہیں پہ ہوتے ہیں؟ بالکل یہاں پر آئیں سر. علی صاحب یہاں پہ ہوتے ہیں. علی بھائی تشریف لائیے. علی بھائی کیا کرتے ہیں یہاں پہ سر؟ سر میں یہاں پہ انچارج سر کا ہیلپر ہوں ان کا. اور سر جو بیٹھے ہیں عمیر مسلم صاحب میرے انچارج ہیں, میں ان کا ہیلپر ہوں, اسسٹنٹ ہوں. اور یہاں پہ تقریباً 3-4 سال سے جاب کرتا ہوں. اور بکس کی صفائی اور شیلفس کی صفائی, کمپیوٹرز کی صفائی, چیئرس کی, ٹیبلز کی صفائی, اور ان کے چھوٹے موٹے فائل ورک کروانا وارڈز میں لے جا کر یا کہیں سے بھی. تو یہ سارے چھوٹے کام جیسے کام میں کرتا ہوں. اور تھوڑا سا وزنی کام بھی میں ہی کر لیتا ہوں کیونکہ اچھا کیا اٹھا لیتے ہیں؟ نہیں اٹھا نہیں لیتا, بس یہ ہے کہ زیادہ ساری چیئرز اکٹھی کرنی ہے, ان کو ایک جگہ جمع کرنا, یا پھر جو ہے نیچے. مجھے لگتا ہے سارا آپ نے ہی صحیح کر کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے نا؟ بڑی محنت کرنی پڑتی ہوگی. ہاں جی سر, بس ان کا اور میرا مل جل کر کام ہے. کہاں سے ہیں آپ؟ میں سر لاہور سے ہی بلانگ کرتا ہوں. کس ایریا سے؟ میں آیا تھا ٹاؤن شپ سے. اچھا, خود آئے تھے؟ نہیں, میری فیملی چھوڑ کے گئی تھی. میری فیملی بڑی ویل نون ہے پاکستان کی. آپ جانتے ہی ہوں گے نیلسن بھٹی میرے تایا تھے. اچھا. ہاں جی. اور کیفی میرے والد, غزالہ میری والدہ, میرا چھوٹا بھائی بھی خبر راک پروگرام میں آتا تھا, اسد علی کیفی. اچھا. ہاں جی. اور میرا تایا کا بیٹا وسیم عباس, اس کا بیٹا علی عباس, وہ وسیم عباس بھائی کی سسٹر کا بیٹا آغا علی عباس, اور اس کی وائف انلتا. یہ سارے میرے ریلیٹیوز ہیں. لیکن تو پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں تو مجھے تو یہاں پر 18 سال ہو گئے. ہاں جی. مجھے اب آیا تھوڑی ہو گیا, مجھے تو 18 سال سے میں یہاں پر ہوں. آپ کو پتہ ہے وہ سب اتنے ویل نون ہیں, وہ ڈرامہ سے بھی کام کرتے ہیں. 18 سال کے دوران ہی ویل نون ہوئے. پھر آپ نے نہیں ڈرامے میں کام کرنے کا سوچا میں بھی ڈراماز میں کام کرتا ہوں؟ سر میں 18 سال سے ادھر ہوں. اس وقت میں پہلے BCom میں پڑھ رہا تھا, تو اس دوران ہی مجھے یہ مرض ہو گیا تو میں یہاں پہ آ گیا. اچھا, کیا مرض ہوا تھا آپ کو؟ سائیکوسس ویمو کا. پھر میں ان ویمو میں مبتلا رہا, اور ڈاکٹرز نے مجھے وہاں پہ مینٹل ہاسپٹل میں سولر الیکٹرک شاک ٹریٹمنٹس کیے. اب تو آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. اب کتنے سال ہو گئے آپ کو یہاں پر؟ 18 سال کی عمر میں آپ آئے تھے؟ نہیں, 18 سال یہاں پہ ہو گئے. ایج تو میری 47 ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچے ہیں آپ کے؟ شادی کی تھی تب 18 سال کی عمر میں؟ نہیں سر. آتے ہیں ملنے کے لیے؟ بچے میرے ہیں ہی نہیں. گھر والے نہیں. 7 سال سے کوئی بھی نہیں آیا. 7 سال میں آخری بار کون آیا تھا؟ بڑا بھائی. کیا نام؟ عامر علی کیفی. کیا کرتے ہیں وہ؟ وہ ایگزیبیشنز اور یہ آرگنائزر ہے. آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی. تو کیا کہہ کے چھوڑ کر گئے تھے, کیوں نہیں ملنے آتے, بتایا آپ کو؟ وہ یہ کہہ کے چھوڑ کے گئے تھے کہ ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر پہ جھگڑا ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تو واپس جا.
اور صاف صاف اس نے کہہ دیا تھا کہ اب میں تو یہ جب لے کے جانا چاہوں گا تبھی لے کر جاؤں گا، مجھے ایک فون کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے کیا بھی نہیں اور وہ آیا بھی نہیں ہے ابھی تک۔ جب آپ 18 سال کے تھے جب آپ یہاں پر آئے تھے؟ نہیں، میں یہاں پہ آیا تھا 29 سال کی ایج میں، اب میں 47 کا۔ تو آپ کے ماں مجھے باپ یہاں تھے؟ پہ 18 سال، ہاں میرے والدین تھے، والد فوت ہو گئے ہیں اس دوران، 1-1.5 سال بعد ہی وہ فوت ہو گئے تھے۔ والدہ میری US سے چلی گئی۔ کبھی ان کا فون آتا ہے ان کو؟ کوئی فون نہیں آیا، 2 بار وہ آئی تھیں بس، تو ذرا یہاں کا انوائرمنٹ دیکھ کے، ممبرس کو دیکھ کے، فیمیل ممبرس کو دیکھ کے وہ تھوڑی پریشان ہو گئے، جلدی واپس چلے گئیں اور گھبرا گئیں۔ انہوں نے ایسا انوائرمنٹ کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ پھر دوبارہ نہیں آئی آج تک۔ تو آپ کو دل نہیں کرتا ان کو ملنے کو؟ کرتا ہے تو کیا کروں، وہ سارے تو US سے چلے گئے ہیں سنا۔ وہ فون آج کل واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ پہ بات کرتے ہیں۔ میرے پاس تو ان کا فون نمبر ہی نہیں ہے، دیا بھی نہیں کسی نے؟ فائل پہ لکھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں سب نے سمیں بدل لی ہیں۔ یہ وسیم عباس وغیرہ کو پتہ ہے، یہ جان بوجھ کے بتاتے نہیں ہیں۔ وہ جو ایکٹر ہیں، آپ کو تو ایکٹنگ کرتے ہیں؟ میں وہ ہاں جی، ان سے وہ ایکٹر ہیں تو آپ ڈرامہ میں آپ ہاں وہ تو ہیں نا، آپ ان سے لیں نا نمبر، فاؤنٹین ہاؤس کو پرووائڈ کریں، فاؤنٹین ہاؤس سے رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں۔ اور فاؤنٹین ہاؤس تو مجھے یہی کہتا ہے کہ جی اس کی فیملی کے نمبرز وغیرہ ہمیں میل ہی نہیں رہے، اس کی فیملی رابطہ ہی نہیں کر رہی۔ آپ ان سے لے کے دیں تو سر مجھے کھوج لگا کے واپس بھیجیں انشاءاللہ۔ سر کیا کہیں گے ساری بات پہ؟ ایکچولی من حیث المعاشرہ ہمارا سائیکیٹرک پیشنٹس کے ساتھ یہ رویہ ضرور ہے کہ ہم انہیں ان کے حال پہ چھوڑنا چاہتے ہیں یا ہم انہیں ڈس اون کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اچھا رویہ نہیں۔ اور اب وہ بات بھی نہیں رہی۔ اب 50 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے کے مقابلے میں ذہنی مریض دھڑا دھڑ دنیا میں صحت یاب ہو رہے ہیں، اور معاشرے میں واپس جا کے دنیا میں ایسا ہے۔ سر یہ صرف میڈیسن سے ہی سب کچھ چینج ہوتا ہے یا اس میں کوئی تھیراپی کرنی پڑتی ہے؟ اسپیچ تھیراپی ہوتی ہے، اس میں سائیکولوجیکل انٹروینشنس ہیں، آرٹ تھیراپی ہے، ہم نے ابھی یونٹ کو دیکھا، ہم آئے، میوزک تھیراپی ہے۔ ابھی ہم لوگ کہاں جانے والے ہیں اس وقت؟ ہم ابھی ہمارا جو میوزک یونٹ ہے اس لائبریری اور کمپیوٹر یونٹ میں سے ہو کے وہاں پر جائیں گے تاکہ ذرا ایک نظر۔ ہم آپ سے پھر ملتے ہیں علی بھائی، ٹھیک ہے؟ آئیے تشریف لائیں سر، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر ہے سر آپ کا؟ یہ ہمارا میوزک تھیراپی کا یونٹ ہے جس میں السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، استاد اور علی بھائی تشریف رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پیشنٹس کو جن کا شغف بھی ہے اور اس سے ذہن کو، دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ یہ سارے یہ میوزک سننے والی کیٹیگری کچھ ہوتی ہیں یا سبھی سنتے ہیں اپنے؟ سب کا ٹائم ہے کہ ابھی 10 ابھی بیٹھیں گے، 8 ابھی بیٹھیں گے، کچھ تقریباً باری باری تمام لوگوں کو اس ایکسپوجر سے گزارا جاتا ہے۔ باقاعدہ اس کا ایک شیڈیول ہے، باقاعدہ اس کا ایک اسٹرکچر ہے، اور ہم انہیں اس میں سے گزارتے ہیں۔ اندر چل کے سنیں سر ان کو؟ ضرور، کیوں نہیں؟ شوز اتارنے پڑیں گے ہمیں؟ ہم شوز اتار لیتے ہیں اپنے؟ نہیں ہم شوز اتار کے آئیں گے، آپ بھی شوز کے بغیر ہیں، ہم بھی شوز کے بغیر آئیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر شوز آپ نے اپنے ہاتھوں سے اتار؟ نہیں آپ نے میرے شوز اپنے ہاتھوں سے نہیں اتارنے، میں خود اتار دی ہیں، میں آپ کے پاس خود آؤں گا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں؟ سر بڑا اچھا اور بڑی ذمہ داری والا کام کر رہے ہیں، نیکی تو اپنی جگہ، بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ۔ میں ایک کوشش کرتا ہوں مطلب کہ ان لوگوں کو، جو میرا پیریڈ ہے، ان لوگوں کو سب سلیکٹ ہو کے آتے ہیں، ایک اسے زبردستی آنا پھر اس کا مزہ کچھ نہیں، سلیکٹ ہو کے آتے ہیں، یہ جو کہ میوزک میں آنا چاہتے ہوں تو میری طرف آ جاتے ہیں، تو میں ان لوگوں کو۔ آپ میوزک بجاتے ہیں پھر یہ میوزک اسے سنتے ہیں یا گاتے بھی ہیں؟ نہیں یہ گاتے بھی ہیں سر، اچھا فلمی گانے بھی گاتے ہیں، اچھا جی، مطلب نعتہ بھی گاتے ہیں، اور مطلب کہ میں کوشش کرنا ہے ہر قسم کا انہوں نے تاکہ انہوں نے مینٹین کرنا پڑے۔ اچھا چلو چونکہ رمضان ہے تو کیوں نہ نعت سن کے دیکھ لیجیے، کون سنائے گا نعت؟ سنائیں گے نعت؟ آپ بھی سنائیں گے نعت؟ آپ بھی سنائیں گے نعت؟ یہ سناتے ہیں، یہ سنائیں گے، آپ بھی سنائیں گے؟ چلیں جی سنائیں، پھر کون سنائے گا سب سے پہلے؟ مجھے بیٹھے میں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں۔ ہاں جی سنائیں پھر۔ آپ کی فرمائش؟ ہم سب کی فرمائش۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
सिरते करम दे तारे मेरे अल्लाह पाक रख देने मेरे सिर ते करम दा चांद मेरे अल्लाह पाक रख देने मेरे सिर ते अब इनसे सुनते हैं, अब आप सुनाएं। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, माशाल्लाह अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हुरो इल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया, आमिना देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी, आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी, ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह ही अल्लाह। बहुत हुस्न, माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ से हैं आप? मैं सियालकोट से। सियालकोट से हैं जी। क्या करते थे उधर आप? उधर मैं कुछ भी नहीं इतना खास करता था, जिम्मेदार काम पहले कभी कर दिया करता था, अभी तो इतना खास नहीं करता हूँ। यहाँ कितना अर्सा हो गया आपको? यहाँ तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं। कौन कौन लेकर आया था आपको? खुद आए थे? मेरे वालिद साहब ही लेकर। अच्छा क्या कहते थे वालिद साहब? वालिद साहब कहते तू पागल है। हाँ। अभी वो ठीक कहते हैं कि मैं इसको ले आता हूँ वहाँ से जाकर, अभी मेरी अम्मी कहती हैं कि वो उसको उधर ही रहने दो, हाँ। क्योंकि वो पागल है। तो अम्मी की याद आती है? याद तो आती है, लेकिन नहीं भी याद इतना आती, क्योंकि उनकी दुआओं की वजह से मुझे यहाँ पर टेंशन कोई नहीं है। हाँ, अम्मी की दुआएं सब कुछ होती। कितने बहन भाई हैं? 7 बहन भाई हैं। भाई कितने हैं, बहन कितनी हैं? 3 भाई और 4 बहनें। क्या करते हैं तीनों भाई? तीनों भाई, 2 दूसरे जो है वो सऊदी अरब में है, एक मंदूब है, सेल्समैन है, सेल्समैन को अरबी में मंदूब बोलते हैं। अच्छा, गुड। और जो है एक जो है वो क्या कैशियर है बैंक में, कैशियर है कंपनी में, उसकी 3 ब्रांचेज है, उनका होल्डर है। माशाल्लाह। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी एफएससी मेडिकल है। हाँ, कहाँ से किया था? सियालकोट से, मरे कॉलेज से। क्या नाम था कॉलेज का? मरे कॉलेज सियालकोट। जिधर से अल्लामा इकबाल पढ़ा हैं? वाह, मुझे नहीं पता था ये। जी, मैं आर्मी से हूँ। आप आर्मी से हैं? ये भी सियालकोट से पहले। हाँ, आर्मी में थे आप? जी। क्या करते थे उसमें? शहीदों की पेंशनें बनाता था, जिनको मतलब काम करते थे वहाँ पे कोई? शहीदों की पेंशनें बनाता था बेसिकली। फिर कितना अरसा बनाई आपने? तकरीबन काफ़ी अरसा बनाई। यहाँ कब आए? यहाँ बस क्या नाम है आपका? समीउल्लाह। समीउल्लाह। किसने रखा था ये नाम? पिछले साल अप्रैल में आया था इधर। पिछले अप्रैल में आए थे? आपका नाम किसने रखा था? समी। मैंने नाम रखा है सऊदी अरेबिया मिलिट्री इंडस्ट्री, समी। अच्छा, वेरी गुड। हम बनाएंगे इंशाल्लाह। 57 मुसलमान मुल्कों का इत्तेहाद है। वेरी गुड, वेरी गुड। बन चुकी है। आपको मजा आता है यहाँ म्यूजिक क्लास में? जी आता है। आप क्या क्या करते हैं? नात भी पढ़ते हैं, गाने भी गाते हैं? शेर व शायरी कर लेते। शेर, कोई शेर सुनाए फिर। चलें, एक सुना दें शेर कोई एक। तुझे तो सॉरी, कोई बात
कोई भी प्यारा सा? शादी हुई थी आपकी? जी हुई थी, टूट गई है। टूट गई है? कितनी देर पहले हुई थी? पिछले साल अप्रैल में। कितने बच्चे हैं? कोई नहीं, टूट गई थी। कोई बात नहीं, फिर कर वो लेंगे। 1 करोड़ रुपया मांग रहे थे। क्यों 1 करोड़ मांग रहे थे? वो कह रहे थे बस। अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे, हम फिर कर लेंगे। जी खैर है, एक ख़त्म हुई दूसरी हो जाएगी, ठीक है ना? हाँ 4 कर सकते हैं, 4 जी 4 करेंगे हम। शेर। अच्छा जी। मैं भी मैं 3 शेर सुनाना चाहूँगा। हैं? 3 शेर सुनाना चाहूँगा। सुनाए चलिए, इधर से सुन लेते हैं सर पहले, फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम फनूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वाह, वो शम्मा कैसे बुझे जिसको रोशन खुदा करे। वेरी गुड, मिटा माशाल्लाह। दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। वाह, सारा प्यार जमाने दा अल्लाह दे प्यार तो वार दे आ, वाह, जिंद जान में ठन मदनी मन ठार तो वार दे आ। वाह, मैं रोशनी अखियां दी रोजे तो फिदा करके, वाह, गुलदस्ते दरूदां दे दरबार तो वार दे आ। आहा, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या बात है, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ बहुत शुक्रिया है। मैं फिर आऊँगा, ठीक है, खुदा हाफिज़। फिर आऊँगा जी, मेहरबानी आप लोग की। अब हम अगली तरफ चलते हैं जी। डिप्टी डायरेक्टर मेरे साथ थे, देखें बड़े प्यार से बात करते हैं ये लोग। मैं आपको बताऊं, पढ़ा लिखा शख्स इतने प्यार से बात नहीं करेगा जितना यहाँ मौजूद शख्स प्यार से बात करता है। क्योंकि सर साहब मैंने तो ये देखा है, नदीम साहब, अगर हम ये कहें तो गलत ना होगा कि कई मरतबा ये लोग सेहतमंद लोगों से ज़्यादा इज़्ज़त एहतराम और प्यार से पेश आते हैं। मेरे ख्याल से आते हैं। मैं कहता हूँ परफेक्ट है ये बात, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा अब हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम इस वक्त हमारा जो फीमेल ब्लॉक है, हाँ जी, वहाँ पर जा रहे हैं, जो कि डेडिकेटेड 100 बेड्स के करीब फीमेल यूनिट है, जहाँ पर हमारी काफ़ी बहनें इन पेशेंट सर्विसेज में रहती हैं। ज़ाहिर है इन्होंने भी आउटडोर इलाज में ही जाना है, लेकिन ये ख़वातीन बुज़ुर्ग हैं या इनमें आपको मुख्तलिफ एजेस की हमारे पास 18 साल की उम्र से लेकर अच्छा ये बेल लगाई हुई है आपने और गेट है, गेटेड है, तार है। एक्चुअली ये एक फीमेल यूनिट है, यहाँ पर सारे स्टाफ मेंबर्स भी फीमेल्स हैं। अच्छा। और उन्होंने ही इसका इंतज़ाम चलाना है। यहाँ पर किसी मेल को जाने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी डॉक्टर वगैरह ने भी जाना है, जो कि फीमेल्स भी काफ़ी हैं, किसी मेल ने जाना है तो वो कोई फीमेल अकम्पनी करेगा। हम आपकी इजाज़त के साथ चलते हैं सर। आइए तशरीफ लें। आए जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये टोटल ख़वातीन यूनिट है, ये मेहमान खाना है, विजिटर रूम है। फैमिली मीटिंग्स के लिए जब फैमिली मेम्बर्स आएँ हमारे मेम्बर्स से, बहनों से मिलने के लिए, तो वो भी यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और उनके फैमिली भी उनसे यहाँ पर मिल सकते हैं। तो सर यहाँ पर हर एज की खातून मौजूद है? जी, जैसे मैंने अर्ज़ किया, 18 साल से लेकर 60 साल तक की एज की ख़वातीन हमारे इलाज में मौजूद है। अच्छा ये फीमेल ब्लॉक आ गया सर यहाँ पे। इनकी रूटीन क्या रहती है, क्या मामला रहते हैं सर? तकरीबन सुबह 8:30 पौने 9 से असेंबली, नाश्ता, ग्रुप, इंडिविजुअल सेशंस, आर्ट थेरेपी, वो इनका अलग से बिल्कुल होता है। म्यूज़िक थेरेपी यही होती है, आर्ट थेरेपी जी बिल्कुल। ये हम इस तरफ चलते हैं अभी, ठीक है, और यहाँ का भी हम आपको डेडिकेटेड जो आर्ट यूनिट है वो, ठीक है, ये ऑक्यूपेशनल यूनिट है, आर्ट एंड क्राफ्ट यूनिट है, लाइब्रेरी है, स्पिरिचुअल यूनिट है, सॉरी यहाँ पर म्यूजिक थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से ये हम बदल के यूज़ करते हैं। दिन के मुख्तलिफ हिस्से में अस्सलाम वालेकुम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। अब ये अभी यहाँ पे भी ड्राइंग चल रही है, बात करें सर हम? बिल्कुल कीजिए। आए सर, आए आपके साथ ही चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बैठे आप बैठे। कैसी हैं माँ जी? मैं ठीक हूँ। आप क्या कर रही थी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ड्राइंग पिक्चर बना रही थी। ये आपने खुद ही बनाई है? हाँ जी, ये मैंने खुद बनाई है। कौन सा कलर है ये? ये एक तो ये ग्रीन ब्लू है, ये रेड है, ये फिश शिप है, ये शिप की पिक्चर ली हुई है और इसमें ड्राइंग की हुई है। अच्छा, ये शिप का क्या करेंगे इस शिप को बना के? शिप ये पानी में चलती है। ठीक है, और क्या क्या बनाना आता है आपको? और फ्रूट वगैरह बना लेते हैं, जैसे ऑरेंज, मैंगो और सेब। ड्राइंग में?
ड्राइंग में, हाँ जी, पिक्चर बना लेते हैं और उसमें रंग भर लेते हैं और फ्लावर भी बना लेते हैं। फ्रूट चाट भी बनाती हैं आप? फ्रूट चाट, हाँ हाँ जी, वो कैंटीन में बनाते हैं। बनाते हैं? कौन सा फ्रूट पसंद है आपको सबसे ज़्यादा? फ्रूट सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है स्ट्रॉबेरी, मैंगो सबसे ज़्यादा पसंद है। कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे? यहाँ पे मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं, 8-10 साल हो गए हैं। और मैं आती जाती रहती हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे इधर एडमिट करवाया हुआ है। कहाँ घर है आपका माँ जी? मेरा घर फैसलाबाद में है। इतनी दूर से आती हैं आप? हाँ जी। रोज आती हैं? रोज नहीं आती, कभी कभी चल जाती हूँ। ईद के बाद चल जाऊंगी या पहले 2 दिन पहले या 2 दिन बाद चल जाऊंगी। ईद के बाद चल जाऊंगी शायद। आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में हम तकरीबन 3 भाई हैं और 5 बहनें हैं। एक भाई और बहन गैर शादीशुदा है, बाकी सबकी शादियां हुई हैं। आपकी हो गई? भाइयों की नहीं। क्यों? मेरे रिश्ते आते हैं, अभी शादी नहीं हुई। क्यों नहीं की आपने शादी? इसलिए मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, टेंशन का। मैंने एफएससी कर रही थी तो मैंने एफए कर लिया और इसके बाद पेपर दे के हट गई थी कॉलेज से। कोई बात नहीं, अब इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। मैं आपके पास ना बैठ जाऊं ऐसे पकड़ के? क्या नाम है आपका? ईश्वर सुल्ताना। कहाँ से आई हैं आप? लाहौर में रहती हैं? कहाँ रहती थी? लाहौर में किराए का मकान था। कहाँ पे? किस जगह? जगह का मुझे नहीं पता है। अच्छा, तो यहाँ कैसे आई थी आप? यहाँ पहले ओल्ड होम में थे ना, ओल्ड होम वालों ने फिर इधर भेज दिया। क्यों? बस उधर कुछ हुआ था, पता नहीं क्या। ओल्ड होम वालों ने फिर उधर कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? यहाँ मेरा खाली साल तो हो रहा होगा। साल हो गया आपको? आपके अब्बू का नाम क्या था? शाहपुर जान। शाहपुर जान? पूरा नाम क्या आपका? मेरा? आपका पूरा नाम? किश्वर सुल्ताना। ईश्वत रुखसाना? किश्वर सुल्ताना। किश्वर सुल्ताना नाम था। आगे अब्बू का नाम क्यों नहीं लगाया आपने आगे? वैसे ही बस। वैसे? हस्बैंड क्या करते थे आपके? बहुत हो गया। क्या करते थे? काम स्पेयर पार्ट के में काम करते थे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक ही बेटा है बस। एक ही बेटा है? जी। कहाँ होते हैं वो? उधर मेरा बेटा उधर मर्दाना साइड पे। कितनी उम्र है उनकी? 15-16 साल। 15-16। 15-16 साल? जी। क्या करते थे वो? कौन? आपके बेटे? वो उधर का काम करता है। शादी की थी उनकी? नहीं, अभी शादी नहीं होगी। क्यों? वैसे अभी तो बच्चा है, उसकी उम्र नहीं है शादी की। वो 15 साल की वजह शादी कर देते हैं, है ना? काम भी तो कर रहे हैं ना। मिलने आते हैं आपको? हाँ, मिलने दे कोई देता नहीं है वैसे, फिर भी कभी कभी कौन नहीं मिलने देता आपको? यहीं गेट पे बैठते हैं जगह करने वाली। तो आपको कैसे पता चलता है आपका बेटा बाहर आया? कोई मुझे आके बता देता था। तुम्हारा कौन बताता है आपको आके माँ जी? बस कोई ना कोई कह देता है आके। आखिरी बार बेटे से कब मिली थी आप अपने? याद है? नहीं, ये भी याद नहीं है। ईद पे आए थे मिलने लास्ट टाइम, पिछले साल जब ईद आई थी? हम उस वक्त में दी होंगे। अच्छा, आपने ईदी दी उनको? नहीं। क्यों ईदी क्यों नहीं दी आपने बेटे को? मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो आपने उनसे लेके बेटे को ही दे देनी थी ईदी। तो बेटे के साथ क्यों नहीं घर जाती हैं आप? हमारा घर ही नहीं है, कहीं किराए का मकान था वो फिर खाली हो गया। तो बेटा कहाँ रहता है? बेटा इधर यही यहाँ पे, जहाँ आदमी जहाँ काम करते हैं वही मेरा बेटा भी इधर ही है। यहाँ पे? जी। अस्सलाम वालेकुम। मर्दाना साइड पे। अच्छा, मर्दाना साइड पे। क्या हाल है आपका माँ जी? ठीक है। ठीक है। इतनी प्यारी लिपस्टिक लगाई हुई है आपने, कहाँ से लिया आपने ये? बाजू ने लगाई है। सबने लगाई हुई है एक जैसी? सबको एक ही लगा दी थी? सबने एक जैसी लगा ली थी। आप सब लोग इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह, पता है आप लोगों को तो ज़रूरत ही नहीं है लिपस्टिक लगाने की, सारी इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह। क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं, यहीं पर होती हूँ फाउंटेन हाउस में। क्या करती हैं फाउंटेन हाउस में आप? फाउंटेन हाउस में
कैंटीन में काम करती हूँ। क्या काम है आपकी जिम्मेदारी? वो फ्राइज कटिंग करती हूँ। फ्राइज वो आलू वाली चिप्स? मैं तो आलू वाली चिप्स कहता हूँ, मुझे पता नहीं फ्राइज किसको कहते हैं। तो कहाँ रहती थी आप, कहाँ से आई हैं? मैं जब छोटी सी थी मैं इंडिया में रहती थी, मेरे घर वाले इंडिया से मुझे कराची ले आए। फिर मैंने मैट्रिक तक पढ़ा है। कहाँ से? कराची से। कराची में? जी। किस स्कूल से? अली स्कूल से पढ़ा था। मैट्रिक तक पढ़ा आपने, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। बलूचिस्तान में मेरी शादी करवा दी और मेरे घर वाले ना छोड़ के चले गए। वो हिंदू थे, मुझे मुसलमान से शादी करवा के खुद चले गए। फिर मेरे शौहर ने खुद चले गए इंडिया और मैं शौहर के पास रहती थी। शौहर ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया अपने बलोचों में। फिर मुझे उसने छोड़ दिया, मैं ईदी तक आ गई थी। खुद ही आई थी आप? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं है मेरे। तो फिर आपने वापस नहीं जाना घर अपने? घर में अब कैसे जाऊंगी, मेरे घर वाले छोड़ के चले गए मुझे। कौन छोड़ के गया था आपको? ईदी तक मैं खुद आई थी। क्यों? और घर चली जाती हैं आप? घर वाले चले गए थे छोड़ के। कहाँ? इंडिया चले गए। क्यों? बस वो मुसलमानों में मेरी शादी हो गई थी ना। तो आप भी तो मुसलमान हैं। अब मैं तो मुसलमान हूँ लेकिन घर वाले तो नहीं है ना मुसलमान। फिर वो कहते अब आप यहीं रहो। हाँ। कोई बात नहीं, आपकी फैमिली है सारी, ये डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, वो हमारी बहन है, सब हैं, सब आपके साथ। खाने में क्या मज़ेदार बनाती हैं आप? मैंने ईद पे आना है, मुझे ईद पे कुछ खिलाएंगे आप लोग? खाने बना लेती, मुनासिब से बना लेती। क्या क्या बनाती हैं? कढ़ाई बना लेती हूँ। अच्छा, किसकी? चिकन की। वाह, चिकन की। और कौन सी कढ़ाई में? पुलाव नहीं आते आप लोगों को बनाना? बिरयानी आती। पुलाव भी आता है? अच्छा, बिरयानी आती है। बस बिरयानी? पुलाव और बिरयानी में फ़र्क क्या होता है? पुलाव चावल डाल देते हैं, ऐसे जीरा फिर मसाला वगैरह ऐसे जी। और पानी एक अगर हाँ, दरमियाना पानी, और फिर धीमी आंच पर पका लेते हैं। फिर धीमी आंच पर पका लेते हैं। ऐसे पकाते हैं जी। ठीक है। पाए खाता हूँ मैं शौक से, पाए बना लेंगे आप लोगों के लिए? ईद पे आऊँगा मैं आप लोगों से खाने के लिए। अच्छा ठीक है। ठीक है। अभी आप लोगों ने इफ्तारी करनी है, आप लोगों के साथ इफ्तारी करूँगा मैं। सही है। बनाया आप लोगों ने मेरे लिए कुछ? वो उन्होंने मुझे बताया, माँ जी ने कही मैंने समोसे बनाए हैं और फ्रूट सलाद बनाया है। हाँ। और दही भल्ले भी होते हैं। दही भल्ले भी हैं? दही भल्ले भी खा लेंगे अब। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आप लोगों में दुआओं में याद रखना है। ठीक है। हाँ जी, नात भी आती है। क्या कहती है? नात आती है, सुनाए। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, माशाल्लाह। ए रब दो आलम का महबूब यो गाना है, माशाल्लाह। कल पुल से जिसे हमने खुद पार लगाना है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ज़हरा का बाबा है, हसनैन का नाना है। माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये आपके हाथ में क्या? ये तो आपने निकाल के दिखाया नहीं मुझे। ऊपर तो रखे जरा, देखें, छुपा के रखा हुआ था मुझसे, हैं? देखा है? मैं खा लूँगा, हैं? खा लूँ मैं? दो सारा चाहिए मुझे। ये भी ले लूँ? हाँ। वो भी ले लूँ? फिर आप क्या खाएंगी? अफ्तारी। तो उसके बाद नहीं खाना होगा आपने ये? जी। फिर क्या करेंगी? खिचड़ी। हैं? फिर क्या करेंगी? ये तो मैं खा जाऊंगा, वो मेरे से आदमी देखा है ना वाला, वो खा जाएगा सारा। हैं? सारा खा जाता है वो, अपनी बीवी का सभी खा जाता है, घर वालों के सभी खा जाता है, खा जाएगा वो। फिर फायदा आप क्या खाएंगी फिर, है ना? हाँ। देखो मेरी बहन, आप खाएं, ठीक है? हम फिर आएंगे। आए नीम साहब। अगर आप वो सामने देखिए तो एक ब्यूटी सैलून। हाँ, वो ब्यूटी सैलून बनाया आपने, जहाँ पर रेगुलर कोई बालों की तराश खराश और बाकी वैसे ही औरतों का सजना संवरना, हाँ जी, उनकी नीड है। और वो है स्टोर रूम, रूटीन में, आपके रूटीन में। इसको बाकायदा बंद किया गया है, ये इसकी क्या वजह है? जो तारशा लगा के दिखाएं यार जी। उधर। एक्चुअली हमारे पेशेंट्स एक्यूज
एक्यूट फेज़ में इस तरह की दिक्कत का शिकार भी होते हैं कि अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाना या छलांग मार के अपने आप को ज़ियत पहुंचाने की कोशिश करना, तो इस तरह की एहतियातें इलाज के शुरू में फ़ायदेमंद होती हैं, बाद में स्टेबल हो जाएं तो फिर बात आगे बढ़ती है। ठीक है, यानी यहाँ ये हिस्सा उनके लिविंग एरिया की तरह जहाँ ये सोती हैं बैठती हैं, ये हमारा लिविंग एरिया फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट होके ये 3 फ्लोर्स हैं। अच्छा। और हमारा जो किसी पेशेंट का मरीज़ा का एडमिट होते ही 15 दिन रहना वो कौन सा एक्यूट है। ऑन योर राइट आपके दाएं हाथ पर ये ड्यूटी स्टेशन है, नर्सिंग स्टेशन है। ठीक है। और इधर हमारे डॉक्टर्स रूम भी हैं। ठीक है। इधर टॉयलेट है आप लोगों के अंदर? इस वक्त दाएं हाथ में ये डाइनिंग हॉल है जहाँ पे खाना खाते हैं, हम देखते हैं सर। अच्छा, एक टाइम पे खाना मिलता है, ऐसा नहीं होता कि सम टाइम कोई एक कह देता है कि जी मुझे अभी नहीं खाना, मैं बाद में खाऊंगी, तो उसके लिए क्या करते हैं फिर आप? थोड़ा बहुत तो जाहिर है कि अकोमोडेट किया जाता है, लेकिन वैसे फेयरली आपको सुन के शायद ज़्यादा हैरत ना हो कि हमारे पेशेंट्स हम सेहतमंद लोगों के मुकाबले में ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। हाँ, ये नहीं खपाते। हम इस वक्त अपने पेशेंट्स मेंबर्स के दरमियान घूम फिर रहे हैं। हाँ जी। और कितनी दिक्कत और परेशानी का सामना हमें करना, बड़े आराम से बात सुनते हैं, बहुत आराम से। अच्छा, यहाँ से इनको खाना पकाया नहीं जाता, यहाँ खाना इन्हें सर्व किया जाता है। किचन तो अभी हम चलेंगे सेंट्रल किचन जहाँ से पूरे फाउंटेन हाउस। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी बहन का? ठीक है, लगे ठीक है। क्या खाया आपने सुबह? हाँ जी, सुबह मैंने दलिया खाया था। और दोपहर में क्या खाया था आपने? दोपहर में दर्दा और नमकीन चने वाले चावल। रोज़ा ही नहीं रखा आपने? रोज़ा नहीं रखा। क्यों नहीं रखा रोज़ा आपने? बस मुझे डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ है, ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, ये दरीम साहब ठीक कर देंगे, इनके पास डॉक्टर हैं बहुत अच्छे। ठीक है। कहाँ से आई है मेरी बहन? मंडी महादेव से। इतनी दूर से आई हो? कैसे आई थी? पहले हम जागरा थे, फिर बताला आ गए, फिर पिंडी आए, फिर शादी मूंग गई, मूंग, और अभी उधर 28 तक में शादी हुई। कितनी देर शादी रही? 17 बरस। 17 बरस शादी रही? हाँ जी। बच्चे तो बड़े हो गए होंगे। एक इतना और एक इतना। माशाल्लाह। आता है मिलने, आता है मेरी बहन को? एक दफ़ा आए थे, बहुत कमज़ोर थे, मैं जाना चाहती थी पर मुझे कोई लेकर ही नहीं गया, मेरे हाथ पाँव छूट गए। वो तो रो रहे होंगे फिर। मैं उनकी सेहत देखकर मरने वाली हो गई थी। कोई बात नहीं, अब फिर मिलेंगे। वो दिल करता है उनको मिलने को? दिल करता है। हम मिलेंगे मेरी बहन एक दिन। हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, चाइल्ड यानी कि बच्चों को, मेरा पास साइकोलॉजिस्ट नहीं है, पैदाइशी पागल हूँ हल्की सी। कौन? मैं। कोई बात नहीं, ठीक है मेरी बहन, आप बिल्कुल ठीक हैं, कुछ भी नहीं है। पता है, अब आप कुछ दिनों बाद अपने घर जाएंगी, अपने बच्चों के साथ खेलेंगी आप, है ना? क्या नाम है बच्चों के? अब्दुल हादी, मर्दा मेरा नाम है। हाँ जी। और बेटी का नाम है इसरा है। माशाल्लाह, इतना प्यारा नाम है? बेटी भी, एक बेटी एक बेटा है? हाँ जी। कि 2 बेटे 1 बेटी है? 2 बेटे और 1 बेटी है। हैं या 1 बेटी 1 बेटा है? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं? 2 बेटे। कोई बात नहीं, वो एक दिन मिलेंगी मेरी बहन को, ठीक है? अच्छा भाई। खुश रहें मेरी बहन। आए जी, बड़े मासूम होते हैं लोग, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। दिल के साफ हैं, जो हैं सच्चे हैं, जो दिल कुछ ना कुछ कोई इनमें मुनाफकत नहीं, कोई इनमें वो चीज़ें नहीं। अच्छा, ये रूम है, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप्स, क्लासेस, सेशंस, इस तरह की एक्टिविटी होती है जिसका इलाज और रिहैबिलिटेशन से हिस्सा है। इसी दीवार के पीछे हमारा सेंट्रल किचन भी है। ठीक है, अभी चलेंगे भी वहाँ। अच्छा, इसी बार के पीछे सेंट्रल किचन है आपका? ठीक हो गया। उस वक्त था मर्दाना वार्ड से मुसरफ वो आए थे, जहाँ पे हम लोग खड़े थे, वहीं एग्जैक्टली था जहाँ से हमने स्टार्ट भी किया। हाँ था जी, उसके पीछे। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। तो सर, ये सारा प्रोसीजर यहाँ पर किस तरीके से चलता है? इनकी मुलाकातें किस तरीके से होती हैं? जिस तरह बाप है या भाई है, बहन है, कुछ छोड़ जाता है, कुछ छोड़ जाती है, क्या सिलसिला होता है? आप लोग खुद कॉल कर करके उन लोगों को बुलाते हैं? हम भी उन्हें कॉल करते हैं, उनमें से खुद भी हमसे रब्ता करते हैं और एक स्केड्यूल के साथ फिर हम उनसे पेशेंट को मिलवाते हैं, क्योंकि हमारा तो मैंडेट इलाज करने का है। और अगर गैर ज़रूरी तौर पर पेशेंट को फैमिली से दूर रखें या फैमिली खुद दूर रहने की कोशिश करे तो उससे कोई इलाज को या सेहत को फ़ायदा नहीं होता। गो के बीमारी के दौरान ऐसी सिम्टम्स, ऐसे मसाइल हो चुके होते हैं कि वो मरीज़ से दूर भागते हैं, लेकिन
फैमिली का इंटरेक्शन मरीज़ के साथ रूटीन में होना चाहिए और फाउंटेन हाउस में काफ़ी हद तो तक इसमें होता कोई दिक्कत नहीं अक्सर आती, क्योंकि जब आप किसी का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उसका फोकस बिल्कुल एक तरफ होता है, पेशेंट का भी आपका भी, फिर अचानक से जब कोई रिलेटिव मिलने आता है, पुरानी यादें अचानक से ताज़ा हो जाएं, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आती दोबारा? एकदम उनके आने के बाद मीटिंग नहीं होती, पहले हम उन्हें ट्रेन और काउंसिल करते हैं, उसके बाद उनकी पेशेंट से मीटिंग होती है, तो वो फिर ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव नहीं होती, उनकी मीटिंग अच्छी रहती है। हम उन्हें हिदायत भी करते हैं कि पेशेंट से मिलें, क्या बात करें, उसकी सेहत जिससे इम्प्रूव हो उसके साथ बेजा सख्ती ना करें। ये जो इस वक्त खेल रहे हैं बैडमिंटन, ये आपके मेंबर्स ही हैं? स्टाफ मेंबर्स भी हैं, आपके स्टाफ मेंबर भी हैं? मेंबर्स भी हैं। इनमें मेंबर कौन है आपके सर, मैं जानना चाहूँगा। तो हमारे ये सारे स्टाफ हैं, लेकिन ये मेंबर्स सारे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। और या तो खेल के थक चुके हैं हमारी गैर मौजूदगी में, या भी खेलेंगे। ये वो सेंट्रल तारीखी बिल्डिंग है जो सर गंगाराम के जवां साल बेटे जब फौत हुए तो उन्होंने अपनी बहू, जो उस वक्त के माशरे के मुताबिक या तो सती हो जाती थी या आइसोलेट होके माशरे से अलग कर दिया जाता था, उनके लिए। और इस तरह की एक तहरीक चलाई जिसने कुछ ही सालों में हज़ारों बेवाओं को माशरे में री इंटीग्रेट किया, उनकी शादी भी हुई। ये वो सेंट्रल बिल्डिंग है जहाँ से उनके काम का आगाज़ हुआ था। अच्छा। उसके बाद काफ़ी सालों में दीगर अदवार में बाकी तमाम बिल्डिंग्स फाउंटेन हाउस की इस सेंट्रल बिल्डिंग के इर्द गिर्द बनती रही, लेकिन ये वो 1912 की बिल्डिंग है जिसे गंगाराम ने अपने बहू 1812 जी 1912 इतनी पुरानी बिल्डिंग है जी। ये 100 साल से पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ से ये सारा अच्छा काम स्टार्ट हुआ था माशाल्लाह। कुछ साल के बाद फिर फाउंटेन हाउस डॉक्टर ऋषि चौधरी मरहूम ने, पाकिस्तान के जो अवलीन साइकाट्रिस्ट थे, उन्होंने हमारे मरीज़ों की रिहैबिलिटेशन और हॉस्पिटलाइजेशन के जब ये लिया तो उन्हें लगा कि ये तमाम सेटअप तो दरअसल बना बनाया हमारे पेशेंट्स के लिए है, और वहाँ से फिर ये ग्रो करता करता बाकी हिस्सों में भी आया। सर मैं कहता हूँ कि इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े हमारे मुल्क में या हमारे शहर में, ज़रूरत ही ना पड़े कि लोग अपनों से इतना प्यार कर दें कि ऐसी जगहों की ज़रूरत ना पड़े। हम किचन में जाने वाले थे, आइए हम जाएं सर, जाएं चलें आए सर। मैं कह चूँकि प्रोग्राम का वक्त भी हमारा बिल्कुल अब एंड पे आ गया, तो आखिर में हम ज़रा किचन दिखाएं, तैयारियाँ दिखाएं को भी। हाँ जी, आपकी इफ्तारी का वक्त भी हुआ करीब ही है, मतलब हमारी इफ्तारी का वक्त भी 5:30 तकरीबन हो गए हैं। तो क्या क्या इफ्तारी में तैयार किया जाता है सर? हमारे पास एक मेन्यू होता है, पकौड़े, रूह अफ़ज़ा, दही भल्ले, रोज़ाना का एक मेन्यू होता है जिसे फिर बाकी लोग फॉलो करते हैं। अच्छा। हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ मेन्यू होता है 7 डेज़ में। अच्छा। हाँ, तो हर दिन में सर क्या मेन्यू किस तरह डिसाइड किया जाता है? पीर को क्या है, मंगल क्या है, बुध को क्या है? न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एक कैंटीन की कमेटी है जिसमें मुख्तलिफ लोग मिलकर ये काम करते हैं, और ये तो खैर हमारा एक तंदूर है। जी जी, वो तो लाजम है, मलजूम है, रोटियां बनानी है तो तंदूर की तो ज़रूरत है सर। इतने लोग हैं, ये फिर ऐसे इंतजाम आए सर। अच्छा, आइए हम अपने किचन में इस वक्त चलते हैं। क्या बात है जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़ी बेहतरीन तैयारियां की जा रही हैं सर। दूध सोडे का इंतज़ाम भी किया गया है, दही भल्लों का इंतज़ाम किया गया है, और पकौड़े हैं, खजूर हैं, बड़ा अच्छा इंतज़ाम है सर। ये माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इनको रोज़ा रखवाते भी हैं, बस एक तसलसल शुरू किया हुआ, एक सिलसिला शुरू किया हुआ उनको सिखाने के लिए, बताने के लिए कि रोज़ा भी। पेशेंट्स जो सेहत की ऐसी कंडीशन में हैं जिनके डॉक्टर्स उन्हें इजाज़त देते हैं तो बिल्कुल वो रखते हैं। ज़ाहिर है इलाज में हैं तो डॉक्टर से एक प्रायर इजाज़त तो ज़रूरी है। हाँ जी। बाकी नहीं तो वो फिर सहरी और अफ्तारी में वैसे हमारा साथ देते हैं। चले, और नहीं तो फिर दोपहर में तो उनको खाना का सिलसिला चलता ही है। दवाइयाँ और बाकी इलाज ऐसा होता है कि उनके डॉक्टर्स फिर वक्ती तौर पर उन्हें रोज़ों के लिए नहीं कहते। तो सर कितना मुश्किल रहता है ये सब कुछ मैनेज करना? कितने मेंबर्स इसको संभाल रहे होते हैं आपके किचन को? सिर्फ मेंबर होते हैं या आपका स्टाफ भी होता है? हमारे स्टाफ मेंबर्स भी होते हैं और 2-3-4 मेंबर्स भी हेल्प कर रहे होते हैं मुख्तलिफ टाइम में। अच्छा। लेकिन वैसे एक पूरी टीम मौजूद है। ये काम चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन चूंकि तमाम लोग इसे खुशी से करते हैं तो इसमें मुश्किल का एहसास नहीं। सर नेकी भी इसमें हो जाती है और आपकी मेहनत भी है, अजर इसका अल्लाह की ज़ात ने देना है। और हम में से इस वक्त जो
भाई बैठे हम सब के लिए दही भले प्लेट्स में डाल रहे हैं ना, ये हमारे सीनियर डिस्पेंसर हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी अच्छा जी, हैं, माशाल्लाह जी। लेकिन एक खिदमत का जज्बा होता है ना, तो फिर कोई भी पीछे नहीं रहता। हम सब हम उनसे बात करना करेंगे। क्या हाल चाल है मेरे भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से, तबीयत ठीक है? कितने अरसे से यहाँ पे आप? मैं 7 साल से। माशाल्लाह यार, 7 साल में आपने बड़ी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं, मुझे लग रहा है। कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा फेस हुई हो और वो यार ये कंट्रोल से बाहर हो जाती है, कभी ऐसा भी कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ें नॉर्मल रहते हैं, सुकून रहता है? शुक्र है, बेहतरीन चलता रहे। अच्छा चलें यार, वेरी गुड। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। नहीं सर, बाइक की तरफ चलते हैं और साथ यही मैं बात करूंगा कि जो मामला हैं, ऐसा किचन भी बड़ी सफाई सुई रखी हुई है सर आपने। उमूमन किचन मुझे साफ नहीं होते, लेकिन बड़े माशाल्लाह हर चीज़ सफाई से है, हर चीज़ बेहतरीन है। इस किचन और नज़र आता है कि आप लोग दिल से कुछ कर रहे हैं। खाने का एक और एजाज़ भी है डॉक्टर। ये आपको इंटरप्ट, ये मेन्यू लगा सर? जी जी, ये हमारा मेन्यू है गोके है। नवंबर से लेके मार्च तक का तीनों खानों का मेन्यू है। अच्छा। इफ्तार का मेन्यू इसके अलावा है। अच्छा, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीनों का जी। अब अप्रैल में ये चेंज का मतलब 5 महीने एक ही चलता है आपका सिलसिला? तकरीबन मौसम की मुनासबत, बाकी चीज़ें देखना, तो 3-4 महीने का मेन्यू बनता है, फिर उसमें चेंज आती है। और इस वक्त जैसे अब ये तैयारियां हो तो रही हैं। सर मेंबर्स के लिए बहुत कम नहीं जगह बच जाती, आपको मजीद नहीं चाहिए? देखिए, कुछ हमारे मेंबर्स जैसे एडिक्शन वार्ड है, हाँ जी। फीमेल्स हैं, उन्होंने अपने यूनिट्स में ही करना है। जो स्टेबल मेंबर्स हैं वो हम हमारे साथ यहाँ पे शामिल होंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, स्टाफ मेंबर्स सब एक ही खाना खाते हैं। किसी के लिए अलहदा से खाना अवेलेबल नहीं है। सब लोग एक ही जगह पे खाएंगे बैठ के। खाने का मयार इतना अच्छा है कि सब के लिए हाँ जी एक ही खाना। ये इस तरीके से सर मतलब सर्व किया जाता है? से भी सर्व किया जाता है और पीछे से यूनिट्स में या वार्ड्स में भी जा रहा है। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। और यहाँ पे सर ये जो फ्रूट्स वगैरह काट रहे हैं, ये मेंबर्स ही हैं आपके और स्टाफ मेंबर्स भी हैं? अच्छा, हम अपना तमाम काम खुद ही करते हैं। ये तो अच्छा, ये आपने इनको आदत डाली कि मतलब यहाँ से अपनी प्लेट्स लेंगे और प्लेट्स लेके ये लोग टेबल्स पे आ जाएंगे। देखिए, इन्होंने घरों और माशरे में वापस जाना है, तो हमने यहाँ पर इन्हें जितना भी ज़िंदगी में वापस ला सकें, अच्छी तरबियत में से गुजर सके, उतना ही अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने इन्हें दवाइयाँ खिला कर सिर्फ सुलाना नहीं है, बल्कि इन्हें आहिस्ता आहिस्ता माशरे का मुफीद शहरी बनाना है। हमने इन्हें मुआशरे कैसा बनाना है। और सर इसमें आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद कामयाब करे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक बंदे के घर में अगर एक ऐसा शख्स भी मौजूद हो ना जो नॉर्मल रूटीन में ना हो, तो मेरे ख्याल से वो लोग भी इस तरीके से नहीं केयर कर पाते और डेफिनेटली नहीं कर पाते, तो वो यहाँ पर आपके पास हैं। अर्ज कर दूं कि इस वक्त 4 में से 1 यानी 25% लोग दुनिया भर में, गो के पाकिस्तान में ये रेशो थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़हनी बीमारियों का शिकार है। यानी एक घर में अगर 8 लोग हैं तो 2 को साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स का थोड़ा या ज़्यादा का सामना हो सकता है। तो कहा तो ये जाता है कि जिसका जहन है उसे कभी जहनी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। अब डिपेंड यही करता है कि एक शख्स का इलाज कितनी देर में हो जाएगा और कौन करेगा, किस तरीके से हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कि सर किसी भी चीज़ के इलाज के लिए विल पावर बहुत ज़रूरी होती है कि उसने जब कहना है कि मैंने ठीक होना है तो इंशाल्लाह उस दिन से ठीक होना शुरू हो जाएगा। नहीं साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपके साथ बड़ा अच्छा लगा गुफ्तगू करके, जो आपने टाइम दिया है, पूरा आपने बताया। ये मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है कि मैं किसी फाउंटेन हाउस में हूँ और मैंने इतना ज़्यादा उस चीज़ को डिस्क्राइब भी किया और एक्सप्लेन भी किया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी दे, अल्लाह ताला इस मकसद में आपको कामयाब भी करे इंशाल्लाह। आमीन। और आपके तवज्जुह से हम आपके सामीन से भी मुखातिब हैं कि डोनेशन तो अपनी जगह, लेकिन हमारे पास आकर हमारे मेंबर्स के साथ कुछ वक्त भी गुजारें। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी ज़हनी सेहत और बाकी मानदा सेहत को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आके एहसास होता है कि हम कई मरतबा कितनी नाशुक्री में से गुजरते हैं। अल्लाह ताला हमारे मेंबर्स को शिफा दे। आमीन और आमीन आप लोगों की आमीन। दुआएं और सपोर्ट का हमें इंशाल्लाह जी। मैं अब इसमें क्या बोलूँ, बड़ी प्यारी बात डिप्टी डायरेक्टर साहब नदीम साहब ने खुद ही कर दी है कि सिर्फ डोनेशन मकसद नहीं है, वो आप कर रहे हैं, वो आप अल्लाह से कारोबार कर रहे हैं, वो उसका अजर आपको अल्लाह की ज़्यादा देना है। लेकिन अच्छा होता है कि अगर कभी आप मेंबर्स के पास आकर बैठें, उनसे भी गुफ्तगू करें, बड़ा अच्छा लगता है बात करके। मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो माएँ थीं, वो बहनें थीं, वो दिल के इतने साफ लोग, इतने प्यारे लोग कि जब आप जो बात कर रहे हैं ना, आपको वही रिस्पॉन्स आना है जो उनके दिल में है। उनमें बनावट कोई नहीं है,
اور سب سے بڑی بات جو میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کیا, اگر ادب و آداب سیکھنا نا تو ان سے سیکھیں, پھر وہ ہمارے بڑے سے بڑے سیاستدان ہوں, ہمارے بیوروکریٹ ہو, یہ ہم جیسے لوگ ہوں. ادب سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور آ کے ملیں, پیار کریں وہ لوگ جن کی مائیں یہاں پہ ہیں, بہنیں یہاں پہ ہیں یا بیویاں یہاں پہ ہیں, ملیں. آج زندگی ہے, کل نہیں ہوگی. یہ نہ ہو کہ روز سے محشر سخت سوالات کے جواب دینے پڑ جائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے, ہم سب کو بچائیں, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ سوال وہاں سے اور ہم جواب دے پائیں گے. ہم کچھ نہیں بول پائیں گے, ہم اتنے گناہ گار ہیں. تو کوئی ایسا عمل کر دیں کہ شاید کوئی عمل میری رب کی ذات کو پسند آ جائے اور ہماری بخشش ہو جائے. پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محمد عاطف بھٹی اور ٹیم آپ کی آواز کو اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.